Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and we are discussing stability of equilibriums. In last lecture, I have basically explained the basic concept of the related to this concept. So today we'll see this special case when a rigid body, is resting on a rough surface. Okay, if that body is displaced slightly, then how to check whether equilibrium at that point is stable or unstable. This is very important concept. In fact, half of the questions of this topic are based on this concept only. The other half, the general cases can be dealt with Z test, जो हमने डिस्कस किया था कि Z जब मिनिमम होगी, if we take Z as a height from a fixed horizontal plane, then the minimum Z uh, means stability is there in equilibrium. Okay, in case Z is maximum, then we'll say that this equilibrium is unstable. But at the same time, if that Z is depth from a given horizontal plane, then the condition reverses. Okay, when in case of depth, when Z will be minimum, in fact, then the equilibrium will be unstable and vice versa. Okay. So, okay, let us discuss this concept: stability of a body which is resting on a rough surface. Okay. So, okay, let a body is a body means a rigid body, ठीक है, is resting on another fixed rigid body or surface, ठीक है, such that radii of curvatures of the part uh, of bodies in contact is rho 1 and rho 2. Okay, let us say that radii of curvature of the part, like, see, let us say कि these are two bodies which are in contact. This one is fixed and this is free to in fact move on the this lower body, the upper body. और let us assume कि ये जो point of contact है यहाँ पर, if we see radius of curvature for these two bodies, then for one it is rho 1 and for other it's rho 2. Okay, radius of curvature is nothing but change of arc length with respect to the angle psi, which is nothing but angle made by a tangent at that particular point on the curve with the positive x-axis. Okay, okay. Let h be the height above the point of contact. Let h be the height of center of gravity of upper body, ठीक है, above the point of contact. Also, let alpha be the angle between line joining the center of curvatures of these bodies, ठीक है, with vertical. ठीक है, सो बेसिकली जो सेटअप है वो इस टाइप है कि लेट अस से let us say that this is x and y axis. Okay, and this is a fixed surface. Okay, this is fixed surface और इस पर ये एक बॉडी है जो रेस्ट कर रही है, दूसरी रिजिड बॉडी, ठीक है, और ये डिस्प्लेस होकर, मान लो इसको अगर थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगी, इसको थोड़ा बड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है,
सो लेट अस से कि इनिशियली जो है इस पे ये बॉडी रेस्ट कर रही है यहाँ पे, इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया तो ये ऐसे यहाँ पे आ गई, ठीक है। सो लेट अस से कि जो है लेट अस जॉइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दीज बॉडीज, ठीक है। ओके ओके सो बेसिकली दिस इज दिस इज रिजिड बॉडी वन, रिजिड बॉडी वन, ठीक है। बेसिकली दिस इज द रिजिड बॉडी विच इज फिक्स्ड, और ये जो है मूव कर रही है, दिस दिस इज इन इक्विलिब्रियम हियर बट इट मे बी डिस्प्लेस्ड, ओके। तो देखो लेट अस से कि ये जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो वन है, मींस ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको ज्वाइन करेंगे, ये रो वन है। लेट अस से दिस इज सेंटर ऑफ सेकंड बॉडी, या इसको C1 ही बोल देते हैं, चलो ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ दिस सेकंड बॉडी, और इसको O बोल देते हैं। O इज सेंटर ऑफ द फर्स्ट जो फिक्स बॉडी है, तो O ही रहेगा। अभी न्यू पोजीशन में आ गई, मान लो ये C2 हो जाता है इसका सेंटर, ठीक है। और ये लेट से दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज A1, दिस इज एंड हियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज A2। अब जब ये रोल होगी, इसको जब डिस्प्लेस किया तो विल एज्यूम दैट देयर इज प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, ठीक है। और रफ सरफेस है, प्योर रोलिंग में रफ, दैट वी नो दैट फ्रिक्शन डज नो वर्क, इवन नॉर्मल डज नो वर्क, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्टेशनरी होता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है। सो देखो, और ये जो एंगल है दिस इज सेड टू बी अल्फा, ये हमें गिवन है। दिस इज इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो वन है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये रो टू, ठीक है। और जो अच्छा ये फिक्स, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा, तो ये जो हाइट है ये h है, दिस हाइट इज गिवन एज h, ठीक है। तो बेसिकली ये h है हमारे पास, जो ये हाइट है दिस इज h, दिस हाइट इज h, ओके। नाउ अब हमें ये देखना है कि जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, देखो जब इक्विलिब्रियम में रहेगी ये बॉडी यहाँ पे, इसका तो इसका जो भी लेट अस से ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसको जो है इस पॉइंट से पास होना पड़ेगा। ये जो इसकी mg फोर्स जो है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसको यहाँ से पास होना पड़ेगा। क्यों? ये इसलिए कि मान लो अगर यहाँ विदाउट अबाउट पॉइंट A1 इफ वी टेक टॉर्क, तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका जीरो हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहाँ पे वी आर टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये जो mg है इसको इसी लाइन से पास होना पड़ेगा, तभी उसका टॉर्क जीरो होगा, अदरवाइज टॉर्क आ गया तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस लाइन हैज टू पास थ्रू A1। आई होप ये क्लियर है। अब देखो मान लो लेट अस जॉइन दिस, ये जो एंगल है लेट अस से दिस इज बीटा, ठीक है। तो ये C2 है, मान लो ये इसका जो सेंटर ये जो पॉइंट है A1 प्योर रोल हो के ये यहाँ कहीं आ गया, मान लो दिस लेट अस से दिस इज पॉइंट B, लेट अस जॉइन दिस। और मान लो ये जो सेंटर ऑफ ये G1 बोल देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन G1 थी, अभी ये G2 हो जाएगी, इसको लेट अस जॉइन विद दिस। अच्छा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, देखो यहाँ पे C क्या है, C इज C1 और C2 जो है दीज आर द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मूविंग रिजिड बॉडी, ठीक है, जो फिक्स नहीं है, या जिसको हम रिजिड बॉडी 2 बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो G1 G2 है, G1 एंड G2 दे आर द सेंटर ऑफ मास इन द पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ज्योमेट्रिक सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास में भी डिफरेंट, ठीक है, ये तो आई होप समझ में आता है, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्रिक सेंटर तो जैसे स्फीयर है, तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, उसका जो मीन्स जो जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देन ओरिजिन विल बी सेंटर, बट जरूरी नहीं है इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो भी वही हो, दैट डिपेंड ऑन द डेंसिटी और या मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसा है। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है देन इट वॉन्ट बी एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, ओके। अब देखो, अब इसमें देखो ये हाइट h हमें गिवन है, दिस h। ओ अच्छा, G1 और जो C1 है यहाँ पे G2 और C2 जो पोजीशन है, इनके भी इसकी डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं सकती। ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास जो भी होगा बॉडी का वो फिक्स रहेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी कांस्टेंट एनीवे।
और ऐसे भी ये दो पॉइंट है रिजिड बॉडी के, तो रिजिड बॉडी की तो डेफिनेशन यही है कि डिस्टेंस बिटवीन द particles of rigid body is nothing but collection of particles, and the distance between those particles is always constant whatever with the translation or rotation of rigid body. तो अगर इसको ये g1 c1 है, इस डिस्टेंस को लेटर से k, तो यहाँ पे भी ये k ही रहेगी, g2 c2 भी k ही रहेगा, ठीक है। अच्छा लेटर से कि ये यहाँ से रोटेट, जब ये प्योर रोल हुई इस टाइप से, या अच्छा ऐसे ये रोल हो रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पे चला गया, तो लेटर से कि ये थीटा एंगल से रोल हो गई, दिस इज लेटर से थीटा। और ये जो है ये पॉइंट बी पे आ गया, पॉइंट जो ए1 था वो बी पे आ चुका है अभी, तो लेटर से ये फाई एंगल से रोटेट हो गई, ठीक है। देन बाय कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, इसमें क्या हो जाएगा देखो, ये जो ये आर्क या आर्क a1 a2 दिस शुड बी इक्वल टू आर्क a2b भाई a2b, और आर्क a1 a2 सेम होंगे तभी तो प्योर रोलिंग होंगी। प्योर रोलिंग मीन्स जितना रोटेशन होगा उतनी उसमें ट्रांसलेशन हो गया, उसी मीन्स दिस एंड दिस पार्ट शुड बी सेम, देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है। तो आर्क a1 a2 क्या है देखो, ये रो1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो रो1 थीटा, दिस विल बी आर्क a1 a2, और ये जो आर्क a2b है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो2 है, सो दिस शुड बी रो2 फाई। सो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से कि जो डी फाई और डी थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, रो1 बाई रो2, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा वी कैन से, ठीक है। अब देखो अब क्या किया जा सकता है, अभी हमारा मकसद क्या रहता है कि ये जो है ये हमने ये लेटर से ये फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया हमने, रेफरेंस प्लेन जो हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड प्लेन, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास इसका भी यहाँ पे, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी इसकी, ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये जो है लेट अस से दिस डिस्टेंस, इसको कुछ बोल देते हैं, और लेट अस से दिस इज m, तो जो g2m है लेट अस से दैट इज z, तो ये जो z है इसी को तो हमें देखना है, इसको अगर मिनिमाइज करने पे जो कंडीशन आएगी दैट विल बी द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो बिलो द सेंटर ऑफ मास है, या यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन से हाइट देख रहे हैं, जब डेप्थ देखेंगे तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। मान लो इधर कहीं रेफरेंस प्लेन ले लेते तब तो फिर इसमें जो ये डिस्टेंस होती उसको जब वो जो मैक्सिमम होती तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा लेट अस से कि ये जो ये एंगल है ये हमने बीटा एज्यूम किया हुआ, ठीक है। तो देखो जो A1 पॉइंट है वो अभी बी पे आ गया, ठीक है, तो और ये G2 है, तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी बीटा एज वेल। भाई देखो ये जो G1 C2A है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा G2 C2 एंड B, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा इसका। तो अगर इसको A1 और G1 को मिलाया जाए मीन्स B और G2 को मिला दिया जाए, तो ये जो एंगल है ये हमारे पास अल्फा है, ठीक है। अब बस इसमें थोड़ी ज्योमेट्री कंडीशन देखनी है हमें, अभी ये Z देखना, Z मीन्स जो G2M है, सो दिस ये क्या होगा देखो G2M, ओके। सो देखा जाए तो ये जो है अगर हाँ दिस BC2 may not be in fact horizontal, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, अगर ये इसको लेट अस कॉल P बोल देते हैं, तो C2P क्या होगा, C2P की बात की जाए तो ये लेंथ जो है OC2, ठीक है, और ये एंगल क्या होगा देखो, ये एंगल अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका मतलब ये भी अल्फा है, इसका मतलब दिस इज आल्सो अल्फा, तो ये अल्फा प्लस थीटा हो गया टोटल एंगल, तो दिस एंगल विल बी अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो लाइन है तो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट दिस इज अल्फा प्लस थीटा, इसका मतलब जो OC2 cos अल्फा प्लस थीटा होगा दैट विल बी C2P, ठीक है। बट OC2 क्या है, OC2
ये तो रो वन है यहाँ तक, और यहाँ भी रो टू है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये तो दिस इज रो वन प्लस रो टू कोस एल्फा प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज सी टू पी, और हमें चाहिए जी टू एम। सो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस और चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, अगर ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो है जी टू सी टू, इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो अगर इस ट्राइंगल में इसको कुछ भी बोल दो, इसको लेट अस से आर, अगर ये जी टू आर सी टू जो ट्राइंगल है, इसमें कोई भी एक एंगल हमें पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, राइट। तो देखो ये, या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो देखो ये अल्फा प्लस थीटा है, ये फाई, ये बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल तो पाई, टोटल सम पाई होना है, तो ये जो हो जाएगा ये क्या आएगा, पाई माइनस एल्फा प्लस थीटा प्लस फाई प्लस बीटा, ऐसा बोल सकते हैं। और क्योंकि ये जो जी टू सी टू है ये तो के है, और ये 90 ऑफ कोर्स, तो अगर इसकी बात की जाए, ये जो है इसको लेट अस कॉल टी बोलते हैं, चलो। तो टी सी टू क्या होगा, टी सी टू इज नथिंग बट, ये हाइपोटेन्यूज हो गया जी टू सी टू, एंड cos ऑफ ये जो एंगल है दैट इज दिस, ये जो भी एंगल है इसको लेट अस कॉल लैम्डा। सो ये हो गया टी सी टू इक्वल्स टू जी टू सी टू कोस लैम्डा, ठीक है। तो देखो इस सी टू पी तो हमने निकाल ही लिया, सी टू पी तो ये आ गया। अगर इसमें ये सी टू टी एड कर ले जाए, सी टू पी प्लस सी टू टी, इन दोनों का सम ही तो जी टू एम है भाई, ये डिस्टेंस तो हमें चाहिए जी टू एम, तो इसमें प्लस प्लस सी टू टी कर दिया जाए बस, प्लस सी टू टी, तो हमारा काम हो जाएगा। और सी टू टी क्या है, सी टू टू इज नथिंग बट जी टू सी टू कोस लैम्डा, जी टू सी टू, अच्छा जी टू सी टू क्या है, जी टू सी टू इज नथिंग बट, अच्छा दिस इज कांस्टेंट के, हाँ दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो ये के है, इसको के कांस्टेंट बोला हुआ कोस लैम्डा। लैम्डा तो ये पूरा एंगल है जो हमने अभी देखा, लैम्डा व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा, रो वन प्लस रो टू कोस एल्फा प्लस थीटा प्लस के टाइम्स कोस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जो पाई माइनस एल्फा प्लस थीटा प्लस फाई प्लस बीटा, ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज जी टू एम विच इज ऑफ कोर्स जेड, बस इसको मिनिमाइज करना है हमें। पर देखो हमें जो गिवन है, ये जो के है दैट इज नॉट नोन टू अस, वी डोंट नो इसकी वैल्यू क्या है। एल्फा इज गिवन, थीटा एंड फाई तो वेरिएबल है, बिकॉज ये तो रोटेशन की वजह से आए, तो जब इक्विलिब्रियम में रहेगी बॉडी, इनिशियली इट इज इन इक्विलिब्रियम भाई, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है टी इक्वल्स टू जीरो पे, और ये टी इक्वल्स टू टी पे जब डिस्प्लेस किया, तो इक्विलिब्रियम तो ये वाली पोजीशन है, तो इस समय तो फाई भी जीरो होगा, थीटा भी जीरो होगा भाई, ये तो यहाँ पे रहेगी तो थीटा जीरो हो जाएगा, और जब इसकी रोलिंग ही नहीं होगी तो फाइव भी जीरो होगा, तो एट इक्विलिब्रियम थीटा एंड फाइव विल बी जीरो, ठीक है। तो हमारा मकसद यहाँ पे देखो, ये जो बीटा है दैट इज नॉट गिवन एंड के इज नॉट गिवन, तो इनको एलिमिनेट करना है, पर इनके बदले वी नो एच, एच हमें गिवन है, ये जो हाइट है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ये जो हाइट है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दैट इज गिवन, तो एच क्या गिवन है हमारे पास, एच इज ठीक है। अगर इसको देखो, इसको इससे कंबाइन कर दिया जाए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है, हाँ दिस वी नो, दिस इज बेसिकली रो टू, जी ए वन इज रो टू, और ये एंगल एल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल देखो अगर इसको यहाँ से, ये जो भी है सेंटर है सी वन, इसको लेटस कॉल एस बोल देते हैं इसको, तो ठीक है। तो जो एच क्या हो जाएगी, एस ए वन माइनस एस जी वन, ये कर दिया जाए, एस ए वन जो होगी उसमें से एस जी वन माइनस कर दिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब एस ए वन क्या है, देखो ये रो टू है, रो टू टाइम्स ये कोस एल्फा हो गया, ये भाई ये जो ट्रायंगल है ये 90 हो गया, इस ट्रायंगल में रो टू हाइपोटेन्यूज है, तो रो टू कोस एल्फा दैट विल बी एस ए वन, ठीक है, माइनस एस जी वन, एस जी वन ये है। देखो सी वन जी वन के बीच की डिस्टेंस क्या है, अगेन ये 90 हो गया, तो इनमें से कोई एक एंगल हमें चाहिए, आखिर ये अल्फा ये बीटा है, तो ये पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। तो ये जो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है जिसकी ये साइड के है, ये अल्फा प्लस पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये 90 है, हमें ये हाइट चाहिए,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी k टाइम्स कोस एल्फा प्लस बीटा, सिंपल है। सो माइनस k टाइम्स कोस एल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास h हो गई, दिस इज h। आई होप ये समझ में आता है। तो यहाँ से देखो बीटा और k दोनों को हटा सकते हैं हम, इस जो भी हमारा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट k cos alpha plus beta is nothing but rho 2 cos alpha minus h, ये रिलेशन वी कैन यूज। तो ये देखो अगर इस रिलेशन को यहाँ किया जाए यूज, तो क्या आएगा रो 1 प्लस रो 2 cos एल्फा प्लस थीटा। और एक अच्छा ये देखो पाई माइनस तो cos तो नेगेटिव होता है, सो माइनस k टाइम्स cos एल्फा प्लस, ये माइनस है टोटल, थीटा प्लस फाइव प्लस बीटा, ये हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट एट इक्विलिब्रियम थीटा इज आल्सो जीरो एंड फाइव इज आल्सो जीरो। ठीक है, ये तो है। या इसको क्या किया जा सकता है, पहले लेट अस अप्लाई द कंडीशन ऑफ, भाई कंडीशन ऑफ जो स्टेबिलिटी है वो तो डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ही हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम z विल बी मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है भाई, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो ये हाइट है दैट विल बी आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हो गया, डी जेड डी थीटा विल बी जीरो, जिससे वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट में भी वी यूज टू डू। तो डी जेड और डी थीटा करेंगे तो क्या आएगा रो 1 रो 2। अच्छा यहाँ पे थीटा और फाइव को भी जीरो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है, वहां से विल नो इक्विलिब्रियम की जो भी पोजीशन आएगी उसके बाद विल सी कि ये डिस्प्लेसमेंट से स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी देखने के लिए, बिकॉज थीटा एंड फाइव आर वेरिएबल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में दे विल बी जीरो, बट फॉर दैट वी नीड टू नो द कंडीशन, राइट। डिस्प्लेस करके तो विल नो कि स्टेबल है कि अनस्टेबल। ठीक है, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज दिस थीटा एंड फाइव। तो रो 1 प्लस रो 2 साइन एल्फा प्लस थीटा, डिफरेंशिएट किया तो माइनस हो गया, अगेन यहाँ माइनस होगा तो प्लस के टाइम्स साइन एल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस बीटा, ये हो गया, दिस शुड बी जीरो। ठीक है, और अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो ये क्या आएगा माइनस रो 1 प्लस रो 2। अच्छा विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया है तो इसका भी करना पड़ेगा, तो थीटा का तो 1 हो गया, पर यहाँ पे बिकॉज फाइव इज आल्सो वेरिएबल, एल्फा इज कांस्टेंट बीटा इज कांस्टेंट, तो इसका करेंगे तो इस मल्टीप्लाइड बाय एल्फा का 0 हो गया, थीटा का 1 हो गया, प्लस डी फाइव ओवर डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अच्छा इसका और डिफरेंशिएशन किया जाए तो दिस इज कोस एल्फा प्लस थीटा प्लस के टाइम्स कोस एल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस बीटा। ठीक है, और देखो ये डी फाइव और डी थीटा आपने देखा ऊपर, इसकी वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। डी फाइव और डी थीटा इज रो 1 बाई रो 2, दिस इज रो 1 बाई रो 2, राइट। तो इसकी वैल्यू वी कैन पुट हियर। सो ये अगर इसमें एक लाइन और ऐड की जाए, सो दिस डी जेड और डी थीटा इज माइनस रो 1 प्लस रो 2 साइन एल्फा प्लस थीटा प्लस के टाइम्स साइन, ये जो एक्सप्रेशन है एल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस बीटा, और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रो 1 बाई रो 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये रो 1 बाई रो 2 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं 1 प्लस रो 1 बाई रो 2, राइट, रो 1 बाई रो 2। ठीक है, अब सेकंड टर्म का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस पार्ट का, तो कोस हो गया, ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा, बट अंदर का डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। सो वो उसका करेंगे तो 1 प्लस डी फाइव और डी थीटा आएगा, अगेंस्ट होते हैं सेम टर्म, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो नाउ एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन वी नो, दिस इज गिवन। ठीक है, थीटा भी जीरो है एंड फाइव भी जीरो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डी स्क्वायर जेड डी थीटा स्क्वायर देखा जाए तो ये क्या आएगा माइनस रो 1 प्लस रो 2 कोस एल्फा प्लस के टाइम्स कोस एल्फा प्लस बीटा और 1 प्लस रो 1 बाई रो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दिस विल बी, अब देखो इफ इक्विलिब्रियम is stable then z has to be minimum। ठीक है, ये कंडीशन हमने डिस्कस की थी, z को मिनिमम होना होगा।
दैट मीन्स डी स्क्वायर जेड और डी थीटा स्क्वायर जो होगा दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। भाई ये तो वन वेरिएबल के फंक्शंस में जब मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करते हैं तो वी नो कि कोई भी फंक्शन एफ जेड है वो मैक्सिमम मिनिमम होगा अगर डी एफ जीरो होगा और डी स्क्वायर एफ उसका अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उस वैल्यू पे जो भी वैल्यू आएगी इस पे उस पे जो फंक्शन होगा वो मिनिमम अटेन करेगा। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे भी माइनस रो वन प्लस रो टू कोस एल्फा प्लस के टाइम्स कोस एल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा रो वन प्लस रो टू डिवाइड बाई रो टू का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देन देयर विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमें ये के नहीं गिवन है तो इस के को भी हटा सकते हैं, हमने एच निकाली थी, एच की वैल्यू उसका यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। के कोस एल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट रो टू कोस एल्फा माइनस एच। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो के कोस एल्फा प्लस बीटा है दिस इज माइनस रो वन प्लस रो टू कोस एल्फा प्लस ये जो टर्म है इसकी वैल्यू रो कोस एल्फा माइनस एच। रो कौन सा है, रो वन या रो टू? रो टू कोस एल्फा माइनस एच। ठीक है, सो दिस इज रो टू कोस एल्फा माइनस एच रो वन प्लस रो टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रो टू का स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम, जेड के मिनिमा के लिए कंडीशन है। अब देखो रो वन प्लस रो टू इज ऑफ कोर्स नॉट जीरो, तो ये तो रिमूव कर सकते हैं, एंड पॉजिटिव टर्म भी है रो वन प्लस रो टू, दे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये क्या आएगा, ये रो टू स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रो टू स्क्वायर कोस एल्फा प्लस रो टू कोस एल्फा माइनस एच, एंड ये सिंपल रो वन प्लस रो टू रह गया, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और माइनस रो टू स्क्वायर कोस एल्फा, अगर इसको ओपन किया जाए रो वन रो टू कोस एल्फा प्लस रो टू स्क्वायर कोस एल्फा माइनस एच रो वन प्लस रो टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये तो कैंसिल हो गए, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया कि रो वन रो टू कोस एल्फा शुड बी ग्रेटर देन एच रो वन प्लस रो टू, और वी कैन से दैट एच शुड बी लेस देन रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू कोस एल्फा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज स्टेबल। ठीक है, सो कंडीशन of stable equilibrium is h should be less than rho 1 rho 2 divided by rho 1 plus rho 2 cos alpha। ठीक है, और यहाँ पे रो वन रो टू आर रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ जो भी बॉडीज है उनके, रो वन रो टू आर इंटरचेंजेबल बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल, कैसे भी किसी भी बॉडी को रो वन मान लो, किसी को भी रो टू, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि रो वन को अगर रो टू रिप्लेस भी करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और एल्फा इज द एंगल विच द सेंटर द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर मेक्स विद वर्टिकल। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो लाइन जा रही है विच मेक विद द वर्टिकल। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल। तो अनस्टेबल के लिए क्या होगी, इसका रिवर्स होगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, एच शुड बी ग्रेटर देन रो वन रो टू डिवाइड बाय रो वन प्लस रो टू कोस एल्फा। ओके, इक्वलिटी में क्या होगा कि डी स्क्वायर जेड डी थीटा स्क्वायर इज जीरो हो जाएगा, फिर तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट है मैक्सिमम मिनिमम का वो फेल हो जाएगा, तो उसमें फिर थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव करके हमें देखना पड़ेगा, जैसा कि वी यूजुअली डू इन कैलकुलस। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी सिंपल है। ठीक है, अब देखो इसमें एल्फा अगर मान लो, अगर बॉडीज इस टाइप से हैं कि ये जो इस पे रिजिड बॉडी रखी है फिक्स रिजिड बॉडी पे, यहाँ पे एल्फा मीन्स एल्फा जीरो हो जाए, मीन्स वर्टिकली रखी हुई है। भाई पहले तो ये एंगल था यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर है, पर मान लो ये वर्टिकली रखी मीन्स एल्फा जीरो है, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, स्टेबिलिटी के लिए रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू हो जाएगा, क्योंकि एल्फा जीरो कोस जीरो इज वन। ठीक है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ना दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एच ग्रेटर देन, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एच लेस देन रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हेन अल्फा इज जीरो, मीन्स बॉडीज आर केप्ट वर्टिकली ऑन ईच अदर। ठीक है, सो आई होप समझ में आता है। नाउ विल डिस्कस अ क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके,
Okay, so this was asked in CSC 2019 पेपर 1 ऑफ कोर्स फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का यूज था इसमें। ठीक है, अच्छा इससे पहले कि वी अटेम्प्ट दिस, लेट मी टेल सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड बेसिकली स्पेशल केस ऑफ दिस। ठीक है, देखो अगर कोई भी, जैसे ये हमने यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या था, रो 1 है, लेटर से इसका रो 2 है, कुछ भी ले सकते हैं बिकॉज दे आर सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर मान लो ये जो सरफेस है जिसपे कि अपर बॉडी बेसिकली रेस्ट कर रही है, लेट से कि ये प्लेन सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो 1 है, रो 2 है, सो रो 1 क्या हो जाएगा, रो 1 विल बी इंफिनिटी फॉर प्लेन सरफेस, भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस विल बी इंफिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डी एस और डी साई, और प्लेन सरफेस है उस पर आर्क लेंथ एस ले ली हमने। ठीक है, पर जो साई है वो तो जीरो ही रहना है इस पे, तो डी एस और जीरो विल बी इंफिनिटी बिकॉज डी एस इज नॉट जीरो ऑफ, सो रो 1 विल बी इंफिनिटी। और मान लो जो अपर सरफेस है, अगर ये स्पीयर है, सर्कल है, ठीक है, मीन्स 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी है, तो ऑफकोर्स स्पीयर है, डिस्क भी हो सकती है, तो उस केस में रो 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग रेडियस फॉर ए स्फीयर। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया। इनफैक्ट दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी अपने सिलेबस में। ठीक है, वो वेक्टर एनालिसिस में डिस्कस। ठीक है, अच्छा उसमें अब अभी हमने जो ये एज्यूम किया, ये एज्यूम करा कि ये जो है कॉन्वेक्स है, ये सरफेस कॉन्वेक्स है जिसपे की अपर बॉडी लाई कर रही है, रेस्ट कर रही है। अगर ये इस टाइप से सरफेस हो जाए, कॉनकेव हो जाए मान लो, और ये बॉडी ऐसे इस पे रेस्ट कर रही है, अभी तो ये कॉनकेव है सरफेस, तो अभी जो रो 1 हमने एज्यूम की थी उसकी जगह ये जो रेडियाई है उसकी जगह विल रिप्लेस इट दिस बाई माइनस रो 1, क्योंकि कॉनकेविटी चेंज होगी यहाँ पे। तो जैसे मान लो अगर इस टाइप की बॉडी है और ये इस पे ये स्पेयर रखा हुआ जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो 2 है, तो इस केस में ये क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है एच डेट विल बी लेस देन रो 1। रो 1 जो होगा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, रो 1 की जगह माइनस रो 1 हो जाएगा, रो 2 डिवाइड बाई माइनस रो 1 प्लस रो 2, और वी कैन से दिस इज रो 2 रो 1 रो 2 minus या रो 1 minus रो 2, so h will be less than this. So this is condition when the surface, the fixed surface on which the body is lying has a concave basically nature for the curve, its curvature. ठीक है, तो then will replace the radius of curvature by the negative sign. बस ये दो कॉन्सेप्ट है जिनका भरपूर यूज होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में इजी कॉन्सेप्ट इनफैक्ट, और क्वेश्चन भी इससे आते हैं अच्छे मार्क्स के, 15 मार्क्स। ठीक है, तो देखो, अच्छा इसमें सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। ठीक है, देखो ये टॉपिक जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट दे आर यूजफुल, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास हो गया, फ्रिक्शन तो आई थिंक मेंशन भी है, पर इन सब फ्रिक्शन हो गया, वर्क एनर्जी हो गई, ये सब मीन्स दे आर इनफैक्ट these concepts are like Keswan and Bharti case in case of this statics and dynamics, means they are the basic feature of this, right? So अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A body consists of a cone and underlying hemisphere. The base of the cone and the top of hemisphere have same radius a. The whole body rests on a rough horizontal plane with hemisphere in contact with the table. Okay, the part of this combined body, which the part where it is hemisphere, that part is in contact. ठीक है, show that the greatest height of cone so that the equilibrium may be stable is this. Okay, so basically first we have to draw the diagram, उससे हमें समझ में आएगा कि इस टाइप से ये कौन है। ठीक है, और इसका ये जो बेस है वो, और एक हेमिस्फीयर का बेस है, दोनों सेम, रेडियाई दोनों की सेम है। लेट अस से दिस इज आर, और ये हाइट जो है इस कोन की, लेट अस से दिस इज एच। तो हमें पूछा है ग्रेटेस्ट हाइट, सो एट मैक्स क्या होगी, ये पूछा। सो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ कोन सो दैट स्टेबल इज दिस, सो एच मैक्स जो है दैट शुड बी √3a। व्हाट इज ए, अच्छा रेडियाई इज गिवन एज ए। ठीक है, तो इसकी जो रेडियाई है वो ए है। सो आई होप ये समझ में आता है। सो इसमें देखो व्हाट वी कैन डू, पहले तो अच्छा ये जो h होता है, ये हमने देखा था, जो h होता है h इज लेस देन रो 1 रो 2 डिवाइड बाय रो 1 प्लस रो 2।
कोस अल्फा पर वर्टिकल पोजीशन में होता है तो यहाँ अल्फा 0 हो जाएगा। ये कंडीशन थी। दिस इज द कंडीशन फॉर, ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेयर दिस h इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अपर बॉडी फ्रॉम the plane, from the horizontal plane through point of contact, ठीक है। ओके, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, दिस इज गिवन कि ये जो बॉडी है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है। द होल बॉडी रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, रफ है तभी तो प्योर रोलिंग होगी इसकी, ठीक है। सो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट, अब देख बस ये है तो इसका देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1 है, लेट से इसकी ρ2 है, तो ρ1 क्या होगी, दैट विल बी इंफिनिटी। रफ या बोल सकते हैं दिस इज सो बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन की रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होगी, दिस आई डिस्कस। ρ2 क्या होगा, ρ2 होगा जो सरफेस कांटेक्ट में है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखी जाती है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर है तो इसकी जो रेडियाई है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी ए, दैट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इन कांटेक्ट विद दिस रफ सरफेस, ओके। अब देखो अब कंडीशन अप्लाई की जाए, सो बाय कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम h center of mass should be less than ρ1 ρ2 divided by ρ1 plus ρ2 cos अल्फा। और यहाँ पे ρ1 क्या है, अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ρ1 ρ2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए थ्रू आउट तो ये क्या आएगा, cos अल्फा डिवाइड बाई 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ρ1 को इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। तो देखो cos अल्फा, अच्छा अल्फा इज 0 हियर, अल्फा इज 0 बिकॉज वर्टिकली केप्ट है बॉडी, सो देयर इज नो एंगल between the basically the line joining center of this body, या जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जो नॉर्मल पास हो रहा है उसके और वर्टिकल के बीच में देयर इज 0 एंगल, दैट इज व्हाट अल्फा इज। तो ये हो गया 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2, 1 डिवाइड बाई ऑफ कोर्स, so 1 डिवाइड बाई 1 बाई ρ1 मींस 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 बाई a, so this is a, so height of center of mass should be less than a, this is the condition। अब हमारा मकसद है जो अपर बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास पता करना। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो आसान है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया तब भी किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक्स एंड वाई मान लो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो एक्स अगर एक्स और एक्स बार वाई बार है मान लो, तो एक्स बार इज नथिंग बट m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn, मान लो n पार्टिकल से बना है सिस्टम, तो ऐसा होता है। और रिजिड बॉडी के लिए क्या हो जाता है, बिकॉज रिजिड बॉडी में कंटिन्यूस रहता है तो उसमें समेशन mi xi डिवाइड बाई समेशन mi, इसको ऐसा, ये तो पार्टिकल्स के होगा। रिजिड बॉडी में व्हाट विल हैपन, दिस विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको जैसे dm कर दो, ये dm, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ओवर दैट मास होल रिजिड बॉडी जिन मास से मिलकर रिजिड बॉडी बनी है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये जो रिजिड बॉडी है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर जो है इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, इसके जो बेस है उससे 3r/8 डिस्टेंस पे होता है, 3r/8 डिस्टेंस पे होता है। और जो कॉन होता है उसका जो बेस है उससे जो सेंटर ऑफ मास होता है वो h/4 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। ये देख लो कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो उस साइड लाई करेगा जिधर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मास जो होगा वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो इसके बेस की तरफ होगा, दोनों के बेस की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ मास विल बी मोर, सो दैट्स व्हाई द सेंटर ऑफ मास विल लाई नियर दैट पार्ट। सो इसका h/4 है यहाँ से और इसका 3r/8 है, ठीक है। ये दोनों बेसिकली ये याद होने चाहिए रिजल्ट, ये याद नहीं तो इनको डिराइव भी किया जा सकता है, आसान कॉन्सेप्ट है। देखो ये मान लो कौन है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें देखना है, सेंटर ऑफ मास
ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्क लेंगे, ऐसा ले लेते हैं, लेट अस से कि ये जो है, ये लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव ले लिया इसको वाई एक्सिस को। तो ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स वाई, मान लो यहाँ से ये ओरिजिन है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे एक डिस्क ले ली हमने, डिस्क, ठीक है, और इसकी ये रेडियाई ये एक्स है, ये पॉइंट जो हो गया ऑफ कोर्स दिस विल बी एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स कोमा वाई होगा। तो इस डिस्क का जो डीएम अगर हमें लिखना है तो क्या होगा, रो टाइम्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका, ये जो डिस्क है पाई एक्स स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया, और ये जो इस डायरेक्शन में हाइट होगी दैट इज वाई डी वाई बेसिकली, ठीक है, ये जो हाइट है मान लो ये वाई डायरेक्शन में, इसको वी कैन टेक डी वाई, सो डी एम इज रो टाइम्स पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास की बात करें तो क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा अगर एक्स, देखो एक्स डायरेक्शन जो, एक्स डायरेक्शन में तो वी नो कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका इसी लाइन पे लाया करेगा, ठीक है, तो एक्स में तो हमें करने की जरूरत है नहीं, तो वाई डायरेक्शन में वी नीड टू नो, भाई एक्स डायरेक्शन में तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन पे ही लाया करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इस पे लाया करेगा, मतलब एक्स कंपोनेंट जो होगा यहाँ पे इस लाइन पे, ये तो वाई एक्सिस माना है तो एक्स तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स सेंटर, एक्स जो बार है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वो होगा जीरो, ठीक है। अब वाई हमें देखना है बस, तो सेंटर ऑफ मास जो है वाई कोऑर्डिनेट इसका जो होगा वाई बार वो क्या होगा, वाई टाइम्स डी एम और इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से अगर देखा जाए वाई बार इज वाई डी एम, वाई टाइम्स डी एम, डी एम क्या है, रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई डी एम दैट इज रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ये हो गया। अब x और y के जो है ये हमें इसकी लिमिट देखनी पड़ेगी, ये पूरा कौन जो है वो हमें कवर करना है। मान लो ये जो एंगल है इसका ये अल्फा, अगर ये अल्फा है तो x क्या हो जाएगा, ये x है, तो टेन अल्फा की बात अगर की जाए तो दैट विल बी x डिवाइड बाई y, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से x कैन बी रिप्लेस बाई y टाइम्स टेन अल्फा, ठीक है, तो x को यहाँ से वी कैन रिप्लेस बाई दिस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो रो से तो रो कैंसिल हो गया, पाई से पाई गया, सो दिसली देखा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट कैन बी रिटन वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक वाई पहले से है तो वाई क्यूब डी वाई, और ये इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इसमें रो पाई तो कौन है, पाई एंड रो तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, एक्स स्क्वायर अगेन टेन स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर डी वाई, और y की लिमिट क्या है, ये हाइट h है इसकी, तो जीरो से h तक जाएगा, यहाँ पे y जीरो है, यहाँ पे h हो जाएगा जीरो से h, तो देखो अगर इसको अब देखा जाए टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, तो वाई क्यूब डी वाई क्या होगा, एच फोर डिवाइड बाई फोर, और ये क्या आएगा एच क्यूब डिवाइड बाई थ्री, बाई वाई स्क्वायर का क्या आएगा वाई क्यूब बाई थ्री, बस ये सोल्व किया जाए अगर, सो दिस इज थ्री बाई फोर एच, ठीक है, और ये हाइट हमने कहाँ से वर्टेक्स से मेजर की है, तो यहाँ से थ्री एच बाई फोर डिस्टेंस पे वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो इसका अगर इस फ्रेम में लिखा जाए तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा जीरो कोमा थ्री एच बाई फोर, ठीक है, और अगर बेस से देखा जाए तो एच, क्योंकि टोटल एच है तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी एच बाई फोर हो जाएगी, तो आई समझ में आता है। सिमिलरली इसी तरह वी कैन सी कि जो हेमिस्फेयर है उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है, वो यहाँ से थ्री आर बाई एट आएगा, अगर इसकी रेडियस आर है तो थ्री आर बाई एट पे जो वाई डिस्टेंस है उस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा, अगर इसको जीरो जीरो लिया है तो यही, और अगर ये मान लो वाई एक्सिस तो एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये एज ए प्रैक्टिस आप ट्राई कर सकते हो, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है वाई डी एम और डिवाइड बाई डी एम, ये करना है, इसका डी एम लिखना है, इसमें वो रिवोल्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया था, ठीक है, आई थिंक ये मैंने ड्राइव भी किया हुआ शायद थ्री आर बाई एट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले किसी में किया हुआ है लेक्चर में, ठीक है, तो आए हुए समझ में आता है। तो अब देखो इनका इसमें यूज करना था, तो एज सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस बॉडी का, जो बॉडी है हमारे पास ये इस टाइप की है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से एच बाई फोर डिस्टेंस पे है, और इसका जो है अगर यहाँ पे तो क्या है ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इससे डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती है, तो इसको मान लो हमने जीरो जीरो ले लिया, तो यहाँ से थ्री आर बाई एट है, मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या आएगी फाइव
अच्छा इसकी रेडियस तो ए है, सो 5a/8 होगा यहाँ से, ठीक है। एज वी नो दैट center of mass of cone is at h/4 distance from its base, and that of hemisphere, अच्छा ये सब सॉलिड है, ठीक है, हेमिस्फीयर इज एट, सॉलिड है तभी ये सब हो रहा है, ठीक है। एंड that of hemisphere is at 3r, यहाँ पे 3a/8 फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है, हेमिस्फीयर के बेस से, ठीक है। सो जो है y सेंटर ऑफ मास या h सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हाइट, ये जो हाइट है वो क्या होगी, लेट अस से m1, लेट m1 इज mass of cone and m2 is mass of hemisphere, ठीक है। तो ये कहेगा m1 इंटू इसकी, देखो ये जो डिस्टेंस है तो a है, तो a प्लस h/4, ये अगर 0 0 लेंगे हम तो ये हाइट इसकी ये हो जाएगी a प्लस h/4 प्लस m2 क्या है, हेमिस्फीयर का मास है, और इसका यहाँ से 5a/8 होगा, क्योंकि जो बेस है उससे 3a/8 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ये दोनों दो बॉडी है, इसको ऐसा बोल दिया कि दिस रिजिड बॉडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज, एक का मास m1 है, m का m2 है, वैसे हम देख सकते हैं सॉरी, ठीक है। अब देखो m1 क्या होगा, अच्छा ये जो है कंबाइंड मेटेरियल से बनी है, इनकी डेंसिटी सेम होगी, सो m1 क्या होगा, रो टाइम्स इसका जो वॉल्यूम है दैट इज πa², और इसकी हाइट क्या है, h है, 1/3 π², h बाई वॉल्यूम ऑफ कॉन इज नथिंग बट 1/3 ऑफ πr² h, ठीक है। और m2 क्या हो जाएगा, रो टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज 2/3 πa³, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दी जाए यहाँ पे, सो रो π/3 a² h into a plus h/4 plus m2 is rho times 2/3 πa³, 5a/8, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज रो पाई, तो दोनों में वैसे भी कॉमन आ रहा है, सो दिस इज a² h/3 प्लस 2a³/3, ठीक है। आई होप समझ में आता है। नाउ ये हो गया, सो h सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अच्छा ये जो है दिस शुड बी लेस देन a, ये हमने कंडीशन लिखी है और स्टेबल इक्विलिब्रियम की ना, या दिस शुड बी लेस देन a, ठीक है। ये वी कैन राइट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम दिस शुड बी लेस देन a, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पार्ट है ये लेस देन a होना चाहिए। अब इसमें देखो 1/3 तो देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोनों में, रो पाई भी कैंसिल हो जाएगा, रो पाई इज कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बचा क्या है, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक ए कैंसिल हो गया, यहाँ से एक ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या है, ए एच, ए प्लस h/4 प्लस a³ 5/8, हाँ ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, a² h प्लस 2a³, दिस शुड बी लेस देन 1, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो a² h प्लस ah² प्लस 5a³/8, दिस शुड बी लेस देन a² h प्लस 2a³, ठीक है। तो देखो इससे ये हो गया कैंसर, और हमें चाहिए h ना, तो ये हो गया ah²/4, दिस शुड बी लेस देन 2a³ माइनस 5a³/8, दिस इज 16 minus 5,
अच्छा यहाँ पे 2 भी है ये, तो 5a³ मल्टीप्लाई 2 से ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4। ठीक है, सो 8 माइनस 5 इज 3a³ by 4। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट ah² इज लेस देन 3a³। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, और वी कैन से h² इज लेस देन 3a², और बिकॉज h and a बोथ आर पॉजिटिव एनीवे। ठीक है, सो यहाँ से वी कैन से दैट h इज लेस देन √3a, and this is what we are proved. Maximum value of height will be √3a because it has to be less than √3a, so hence proved. So this was the question. ठीक है, गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट इसमें बस इसमें देखो, इसमें ये है इन केस अगर हमें ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मीन्स इनके फॉर्मूले ये पता नहीं है कि कौन का h/4 होता है, इसका 3a/8 है, तो हमें ये डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, डिराइव आसान से किया जा सकता है, वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर किसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो ये सब जो एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करते हैं वॉल्यूम, ये सब ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, उससे भी यू कैन लर्न दिस। ठीक है, वंस वी नो दैट उससे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूले का यूज करना है जो हमने इसमें ड्राइव किया, तो समझ में आता है। ठीक है, गुड क्वेश्चन।